If you want to stay ahead in 2025, these data engineering tools you must have, and the list which I am sharing in the proper video, like it is not based on the priority that you should learn the first thing first, then second thing second. These are the some of the tools that are fundamentals of data engineering. If you know these particular tools, definitely you are good to, and you can boost your career in 2025 right away. If you're a fresher, working professional, like if you want to transit from a different role, definitely you can do it if you know these particular tools. These are 10 basic tools that definitely you should know, and it will help you. So let's start with the video. Who am I? My name is Anurag Shrivastava. I have been working in data engineering from about 4 years. I started my journey in 2020, and I have worked in multiple projects definitely of data engineering, and right now I am a remote data engineer. So I keep sharing my experiences and also on my vlog channel. You can follow out me there also. So let's start with the video. The first thing first, that is today's market. Basically it is not about only the 10 tools, only the 5 tools, only the 6 tools. There are hell lot of tools, hell lot of things. Different companies have different requirements. So it is not a thumb rule that you should know these tools only, then only you can start your journey. So basically these are the common tools that you should know and you can start your journey with. So let's start with the first thing, that is this one. So the first thing first, I'll be sharing the documentations also on the screen, so no need to worry. I'll be sharing everything on the screen. I'll be sharing everything on the description also. So I'll give you a proper guide जहाँ पे आप जाओगे, टैप करोगे, वहाँ पे resources वगैरह मिल जाएंगे, तो easy होगा आपके लिए for the learning purpose. So let's start. The first thing is Snowflake. I have kept Snowflake because the first thing, like I have worked in in the past like 1 year, I have worked in 4 projects, 3 projects. Fourth one is going on. 3 projects I have worked, and all of the projects were majorly on Snowflake. From Snowflake to different warehouse migration, or to different cloud migration, or to Databricks migration, but the source was Snowflake. And I have seen Snowflake in high demand in different, when I was giving my interviews also, it was in high demand. And this is a proper documentation of Snowflake that you can just read it out. You can start with connecting to Snowflake, how to start with Snowflake, what is Snowflake, what is the architecture of Snowflake. So these all things, and you can just start building some project. Definitely that will help you. Start with fundamentals, just read about the Snowflake and start with some building some projects. If you will build some project, that will give you an hands-on proper confidence also, and this tool you will be like what we say, confident about. So this is the first thing. Next thing is Databricks. So Databricks I have kept because it is a kind of a tool basically, that is, it is a go-to like Spark pipelines. You want to build a PySpark pipeline, so it is a go-to tool. You get a proper clusters, you can build your clusters, you can build your compute here, and you can host your proper PySpark clusters, and you can host your data pipelines here, you can run your data pipelines here. And if you want to this is the data community edition, basically community edition, that is free for everyone. You can create your clusters from here, like this is the previous one, insufficient this permission it is showing. So I can create my compute from here, and I can just host any of the projects. I have created many projects in my previous videos also, so you can follow those videos also to build some data pipeline using the Databricks. That will give you a good hands-on. Or else if you want me to make a video on Databricks, a simple video that explains what is Databricks about, how to use a Databricks, what are the layout and all, क्या चीजें होती हैं, शॉर्ट फॉर्म में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में बना दूं, क्योंकि Databricks मेरे को हो गया लाइक 1 साल यूज करते करते, तो 1 साल में मैंने काफी कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर किया, तो मैं चीजें आपको बता सकता हूँ. डेफिनेटली दैट विल हेल्प. तो ये सारी चीजें. अदर देन दैट, ETL प्रोसेस, रियल टाइम फ्रेमवर्क, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस का प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग कैन बी डन ऑन Databricks. इट इज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म. ठीक है, इट इज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म. सो सेकंड थिंग इज Databricks. यू शुड नो अबाउट Databricks. आपको ये और क्लाउड भी पढ़ सकते हो, बट लेट्स गो वन बाई वन. ठीक है, तो आप ये चीज सीख लिए. उसके बाद Apache Spark. सो व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन डेटा इंजीनियरिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी वर्किंग ऑन द बिग डेटा प्रोजेक्ट्स. सो बिग डेटा प्रोजेक्ट्स इज मोस्टली अबाउट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मतलब क्या हुआ कि यू विल बी डीलिंग अबाउट 100 GB ऑफ डेटा पर सेकेंड, पर मिनट, और टेराबाइट्स ऑफ डेटा इन वन टेबल. तो वो टेबल को कैसे, इफ यू वांट टू प्रोसेस इट, यू हैव टू डू वाया डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, वाया बिग डेटा. सो वी विल बी यूजिंग इन मेमोरी प्रोसेसिंग. Apache Spark हम लोग यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग के लिए. सो यू शुड नो दिस पर्टिकुलर टूल. दैट इज अ मैंडेटरी टूल आई विल से फॉर डेटा इंजीनियर. अगर आप, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्किल्ड डेटा इंजीनियर, you should know this particular tool, that is PySpark, this one, what we say, Apache Spark. And I have built many projects, I have built many videos. You can just go there, learn about PySpark, learn about Apache Spark, about the concepts and all in my previous videos. You can go on the playlist section. वहाँ playlist section में आपको एक एक चीजें मिल जाती है, वहाँ से आपको सीखो, सारी चीजें उठाओ. कोई और डाउट्स है कमेंट करके पूछो. आई विल डेफिनेटली बी हैप्पी टू हेल्प यू.
दिस इज द सेकेंड थिंग दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मशीन लर्निंग के ऊपर. नेक्स्ट थिंग इज एयर फ्लो. सो वेन एवर यू आर डूइंग लाइक यू आर बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स, यू आर बिल्डिंग एवरीथिंग, वर्कफ्लोस बनाते हैं. वर्कफ्लोस क्या होता है कि डेटा पाइपलाइन, सपोज आपने 10 डेटा पाइपलाइन बनाई, सो यू वांट टू ऑर्केस्ट्रेट इट, आपको इसको ऑटोमेट करना है कि हाँ 10 मिनट पे चले, 20 मिनट पे चले, हर दिन रात में 2 बजे चले. सो यू आर नॉट लाइक यू विल नॉट बी सिटिंग लाइक दिस ऑन 2 o'clock and waiting to just click on the run button. You will not be doing that. So basically you will automate everything using Airflow. Apache Airflow is a proper orchestration tool to orchestrate your workflows, that if you want to make a DAG, basically a directory cyclic graph, basically that is, if you want to make this workflow run, then after this only this workflow should run, then after this workflow only this workflow should run. If the first one fails, none of them should run. So if you want to do this, these all conditions, these all things can be done on the Airflow. So basically this is the kind of a tool that you should learn and you should know. Apache Airflow, this is the tool, the automating the airflow, scheduling the workflows, or orchestrating the things, and it is one of the modern data engineer. If you are working on the modern data engineering projects, you will be working on these things. Next thing is SQL. SQL is one of the major tool that you should know, because it is a backbone of everything. That backbone means backbone क्यों कह रहे हैं भैया, why you are saying it backbone? So basically if you are working on data, SQL is a kind of a tool जो आप डेटा इंजीनियर की तरह यूज करते हो, डेटा एनालिस्ट की तरह यूज करते हो, कोई और वेब डेवलपर भी यूज करता है, कहीं पे भी डेटा का काम आ रहा है, यू विल बी यूजिंग SQL. तो SQL आपको सबको आना चाहिए. एंड आई हैव मेड मेनी वीडियोस, आई हैव शेयर्ड मेनी गाइड्स ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डेटा विद अनुराग. डेफिनेटली आई हैव बीन शेयरिंग मेनी थिंग्स. तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज पाइथन. तो ये मैंने जैसे आई हैव स्टेटेड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ऑल्सो, इट इज नॉट इन अ प्रायोरिटी लिस्ट. ये लिस्ट नहीं है कि पहले ही सीखना, दूसरा ही सीखना, तीसरा ही सीखना है. दीज आर द टूल्स, ये चीजें आपको सीखनी है. अगर आप फंडामेंटल्स अपना क्लियर करना चाहते हो, आप एक अच्छे जॉब में घुसना चाहते हो, ट्रांजिट करना चाहते हो, एक एक्सपीरियंस बंदे हो, सीखना चाहते हो क्या क्या चीजें आपको चाहिए, तो ये सारी चीज टूल्स हैं. उसके बाद पाइथन एक ऐसा टूल है बेसिकली that will be used in when you are in a data engineering project. 90% of the time आप पाइथन को यूज करके you will be doing many transformation, you will be building data pipelines, you will be building dashboards, काफी चीजें आप कर रहे होते हो. तो डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द इन डिमांड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टूल हो गया, दैट इज फ्रॉम इंस्टॉलिंग टू एवरीथिंग. एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अ प्रॉपर एंड टू एंड अ वन शॉट वीडियो, चीट शीट वीडियो या वन शॉट वीडियो कह सकते हो. आई हैव शेयर्ड द चीट शीट ऑलरेडी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, तो वहां से भी ले सकते हो. अदरवाइज एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना है अपने व्यूज जरूर वहां पे. नेक्स्ट थिंग इज रियल टाइम आप डेटा स्ट्रीमिंग करना चाहते हो. ठीक है, तो बेसिकली कौन सा टूल है, तो देयर इज अ टूल कॉल्ड एज अपाचे काफका. इसका खुद का डॉक्यूमेंटेशन है, दैट कैन यू फॉलो आउट, एंड इट इज वन ऑफ द टूल दैट इज इफ यू वांट टू डू अ रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग, तो आप ये यूज कर सकते हो. परफेक्ट फॉर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को ये है, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है. अदर देन दैट आप अपाचे स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग करके होता है, अपाचे स्पार्क का ही वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो वो आप फ्रेमवर्क कर सकते हो, कॉन्सेप्ट कह सकते हो, तो वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें तो डेफिनेटली हेल्प करती हैं. नेक्स्ट थिंग इज काफका के बारे में सीख लिया हम लोगों ने. उसके बाद फिर पावर बीआई टैब्लू. इट इज नॉट अबाउट कि हाँ पावर बीआई और टैब्लू, यू कैन लर्न बोथ ऑफ देम, यू कैन लर्न एनी ऑफ देम. या आप पावर बीआई या टैब्लू के अलावा लुकर स्टूडियो पढ़ ले रहे हो, क्लिक पढ़ ले रहे हो, तो इट इज अबाउट कि हाँ क्या आपने डैशबोर्डिंग सही से सीखी है. ठीक है, तो इट इज अबाउट नॉट ओनली अबाउट द टूल, आप इट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. डैशबोर्डिंग आप कैसे कर पा रहे हो, आपके पास स्किल सेट्स है कि नहीं, तो ये टूल्स में से कोई एक टूल आप सीख सकते हो. इट इज नॉट अबाउट कि हाँ इसमें ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इसमें कम मिलेगी. इट इज नॉट लाइक दैट. ये ज्यादा डिमांड में वो नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट. इफ यू कैन लर्न एनी ऑफ द टूल, और आप एक एक करके अपने स्विच कर सकते हैं, ईजी हो जाता है. तो दिस इज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पावर बीआई. माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का टूल है, मतलब पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, सो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर. एंड इफ़ यू वांट टू मेक सम वीडियोस एंड ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने बना के काफ़ी रखी हुई हैं, और भी लेके आऊँगा, कमेंट करोगे ज़रूर बुलाऊँगा. टैब्लू का भी सिमिलर रिसोर्स है, ट्रेनिंग का. बेसिकली ट्रेनिंग है टैब्लू का एक वेबसाइट, जहाँ पे यू कैन जस्ट लाइक स्टार्ट विद क्रिएटिंग सम व्हाट वी से प्रॉपर वीडियोज एंड मतलब सॉरी यू कैन फ्रॉम द वीडियो ओनली यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड, प्रिपेयर कर सकते हो. यू कैन कलेक्ट द डेटा, मैपिंग, कैलकुलेशन, एवरीथिंग कैन बी डन फ्रॉम वन प्लेस ओनली. ठीक है, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं. उसके बाद फिर नाइन्थ थिंग दैट विल बी एनी ऑफ द क्लाउड. सो वन ऑफ द क्लाउड इज वेरी वेरी मैंडेटरी. आई विल से यू कैन स्टार्ट विद AWS, GCP और Azure, एनी ऑफ देम. AWS का बहुत अच्छा सपोर्ट है,
डिमांड बहुत ज़्यादा है, एंड आई माई सेल्फ पर्सनली इज मोर स्किल्ड ऑन GCP and recently started working on AWS. So I think both of the platforms are very similar, मतलब टर्म्स का ही थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी मेन सर्विसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं. डेटा वेयर हाउस इधर भी है उधर भी है, स्पार्क सर्विसेज इधर भी हैं उधर भी हैं, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन टूल इधर भी है उधर भी है, तो सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, लाइक सर्विसेज आर सेम ओनली, जस्ट कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तो वो चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है. तो एक टूल आप सीख लेते हो तो एक दूसरा टूल ईजी हो जाता है. तो प्रॉपर देर इज दिस वन दैट इज AWS सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम. So you can start it from here, explore, you can just explore the digital learning plan from here, and like you can just start from here. It is like a free guided sessions, so you can just go from here, and यहाँ से आपको सारे documentations everything. If you want to learn GCP you can go from here. I have learned from the GCP from here only, मतलब proper उसमें फिर project पे भी काम कर रहा था, so I got a proper exposure on that thing. Next thing Azure, if you want to learn, तो Azure का भी proper guide है on their official platform, you can just learn from there. So these are the main things. Next thing, last one I'll say, that is Git. Git is one of the thing, एक ऐसा मतलब टूल है ना, that is important for everyone working in IT, नॉन IT, मतलब नॉन IT में काम कर रहे, वर्जन कंट्रोल कोड का करना है तो देख सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट घुसा है तो वहाँ पे हेल्प होगा. अदरवाइज फिर गिट यूज़ कर रहे हो तो आप टेक्निकल साइड में काम करो, गिट आपको आना ही आना चाहिए. काफ़ी ज़्यादा टूल्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स वगैरह हैं, तो गिट का मैंने ऑलरेडी एक 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, वो जाके देखो भाई, 1 घंटे के अंदर आपको गिट पूरा समझ में आ जाएगा. गिटहब के बारे में सीखने आते हो, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाइए, काफ़ी लोगों का फायदा हुआ, वो जाके यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली. तो ये सारी चीज़ थी, ये सारे वीडियोस थे, मतलब ये सारी लिस्ट थी मेरी प्रॉपर. इफ यू वांट टू गेट इनटू डेटा इंजीनियरिंग, आई थिंक दीज टूल्स अगर आप पढ़ लेते हो तो स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है. फंडामेंटल्स आपके पूरे क्लियर रहते हैं डेटा इंजीनियरिंग में, एंड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए एकदम तैयार रहते हो. तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें थी. अदर देन दैट देयर आर मेनी थिंग्स मोर इन डेटा इंजीनियरिंग. ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ लिया तो हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट. आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको चीज़ें लर्न आउट करनी पड़ेंगी. इस टूल्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती है जो आपको एक एक करके सीखोगे तभी आएगा. और ये कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं थी, पहले मैं बता देता हूं. देयर कैन बी टूल्स, आपके लिए कोई और टूल काम कर रहा है, मेरे लिए कोई और टूल कर रहा है. सो ऑन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव शेयर्ड द मेन थिंग्स दैट इज गोइंग इनसाइड द मार्केट एंड गोइंग एज पर माई एक्सपीरियंस. तो ये सारी चीज़ें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम. ऐसी चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ. प्लीज फॉलो आउट दिस पर्टिकुलर अकाउंट इफ यू फाउंड एनीथिंग अ बिट ऑल्सो हेल्पफुल, एंड फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट जरूर करना भाई, बहुत मोटिवेशन मिलती है. अदर देन दैट हमारे ब्लॉग चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ पे रियल लाइफ हमारी शेयर करते रहते हैं. आई एम अ रिमोट डेटा इंजीनियर, आई कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, वहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंसेस और भी चीज़ें वहाँ पे शेयर करता रहो. डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो. अदर देन दैट इंस्टाग्राम अकाउंट पे भाई हमारे 1,35,000 लोग जुड़ चुके हैं वहाँ पे, और भी लोग जल्दी जल्दी जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाओ. वहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, काफ़ी लाइव जाके बात करते रहते हैं, स्टोरीज के थ्रू बात करते हैं, चैनल्स के थ्रू बात करते हैं, काफ़ी रिसोर्सेज देते रहते हैं. डेफिनेटली हेल्प करेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम. बाय बाय.